RBI Grade B 2023 Phase 2 exam was on the expected lines. And when I say expected, I do not mean to say that it was tough, moderate, or easy. I just mean to say that whatever was expected in each of these three papers, I think it happened just like that, almost on the same lines. Yes, there were some deviations, but I think that is part of any competitive exam. It was not like that something has just come out of the box. And if you feel so that this was really different from what came in the last years, I would request you to please see the last year papers and you will see that it's not completely different from that. So इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या पॉसिबल कट ऑफ्स हो सकती हैं बेस्ड ऑन सम लॉजिकल डिस्कशन एंड द कट ऑफ्स द नंबर्स दैट वी आर गोइंग टू गिव यू डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि वही नंबर्स कट ऑफ होंगे देयर कैन बी डेविएशन फ्रॉम दैट बट we are sharing our opinion based upon what inputs we are getting from students and what our experience is based upon after analyzing the paper. तो डिस्कशन शुरू करते हैं. I would like to call Gurkirat sir also with me. So Gurkirat sir ने अभी ESI का पूरा पेपर एनालाइज किया है, उसका एनालिसिस भी ये करेंगे, ठीक है. So I'll start with the ESI paper itself, right, Gurkirat sir. तो पहले ESI पेपर की डिस्कशन करते हैं. Sir, I would like to know कि ESI पेपर क्या लेवल रहा, क्या सरप्राइजेस रहे, ओवरऑल क्या डिफिकल्टी लेवल रहा एट दी आउटसेट, मतलब इनिशियल क्या लग रहा है आपको? आपका भी 3-4 घंटे देख लिया है पेपर आराम से. सो व्हाट इज योर कॉल ऑन द ESI पेपर दिस ईयर इन द ईयर 2023? So I think if we talk about the unexpected level, it was one thing that looking at the previous year paper of 2022, many students were expecting that it will be a schemes dominated paper, but it was not like that. It was like a combination of schemes, reports, and current affairs. Normal current affairs. ESI current affairs were here. That was one thing. Second point was with respect to reports. If I talk about, with respect to reports, there was a question on World Economic Outlook. There was a question on a WTO rounds, which is not, I can say it's a report. It was a static based question. So one learning here was that the questions from static were being asked. Look, the topic it was giving just like an idea दे रहा था कि शायद एक current का question है, but नहीं. Paragraph was on current, but the question was asked little bit from the background, which was a kind of a static thing. Which means if you have intermixed your current with the static part, then you can solve these kind of questions. That was, I would say, the second learning. Okay. And third, I would say कि अगर आप अच्छी तरह जो एक्सपेक्टेड टाइमलाइंस हम बोलते हैं, अगर आप उसको अच्छी तरह फॉलो कर रहे हो तो देन यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन. बट द पेपर वाज ऑन अ टफर, आई कैन से मॉडरेट टू टफर साइड. टफर ही बोलेंगे. हाँ, जो टफर ही बोलेंगे. रिएक्शन आ रहा है, मतलब मॉडरेट उसके लिए है, मॉडरेट बहुत घिसके गया, बहुत बढ़ गया, बिल्कुल बहुत घिसके गया होगा और शायद उसको अपना एक कॉमन सेंस भी लगाया होगा. जी. अदरवाइज द पेपर वाज आई थिंक इट वाज ऑलमोस्ट ऑन द सिमिलर. लास्ट ईयर भी ESI में छक्के छोड़े थे सबके. बिल्कुल सर, बिल्कुल. So we can say it was almost on the similar lines. Maybe a tad tough also. I mean, after thoroughly analyzing this, we think that it was a tad tough also. But ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. I think पिछली बार भी कम नंबर आए थे, इस बार भी कम नंबर आएंगे. That is the only thing we can say. जी सर. So ESI ठीक है, हम इसको टफ ही मानते हैं, ठीक है. बिल्कुल सर. कोई होंगे 3-4 घिस्सू जो बहुत अच्छा करके आए होंगे, but apart from that, I think everybody who gets selected, उनके बहुत ज्यादा नंबर यहाँ नहीं आने. बट वो भी सर इसको इजी तो नहीं बोलेंगे. इजी तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे. So I thank Gurkirat sir for his analysis on ESI. ठीक है सर. ठीक है. ठीक है गाइस, मैं माइक वापस लगा लेता हूँ. फाइन. सो अभी FM की बात करते हैं गाइस. सो इन FM देयर वर सम सरप्राइजेस, right? I think the first surprise was that there were 5 questions on the schemes related to financial inclusion. It was first time in the history of FM paper that they asked you about the schemes. तो वो थोड़ा एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था, but the questions were not that tough. These schemes were in news also because these schemes completed recently 8 years. तो उसके कारण वो न्यूज में थी. क्वेश्चंस भी इजी थे, फैक्चुअल थे. आई थिंक दीज कुड हैव बीन डन, बट वो एक सरप्राइज था. आई थिंक द सेकंड सरप्राइज, और यू कैन से अ चेंज और मोर ऑफ अ ट्रेंड, दैट जो डिस्क्रिप्टिव में आपके फाइनेंस के क्वेश्चंस आए थे, ऑल ऑफ देम फॉर ऑलमोस्ट फ्रॉम करंट अफेयर्स. देयर वाज नो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, स्टैटिक क्वेश्चंस इन फाइनेंस. ONDC ले लो, रिटेल डायरेक्ट स्कीम ले लो, UPI ले लो, all these questions were from current affairs, RBI notifications like that. तो ये 2 सरप्राइज हैं. तीसरी चीज जो एक शायद टफ आई थी आपके FM के पेपर में, दैट वाज जो आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे 5 क्वेश्चन आए हैं ऑन रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑडिट कमिटी. अगेन टफ उसके लिए थे जिसको उसका बिल्कुल आइडिया नहीं था, दोज हु हैव नॉट रेड अबाउट दैट. बट इफ यू वुड हैव रेड दैट, ठीक है, कहीं भी, एज इन मेनी ऑफ आवर एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैव बीन एबल टू डू दैट. बट शायद वो एक लीस्ट एक्सपेक्टेड पार्ट था कि पेपर में पूछा जाएगा, बट उसके कारण शायद
आई थिंक जस्ट वो 5 क्वेश्चन के कारण, बिकॉज दोज वर रियली टफ. लास्ट ईयर ऑल्सो देयर वर 3 क्वेश्चंस ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस विच वर ऑलमोस्ट ऑन द सिमिलर लाइंस, कि जो पढ़ के गया था वो कर आया, जो नहीं पढ़ के गया था वो नहीं करके आया. सो आई वुड से कि ये आपका कुछ मॉडरेट लेवल पे मैं मानूंगा एफएम का पेपर, बिकॉज मैनेजमेंट वाज रियली इजी. एफएम में ये 5 क्वेश्चंस 10 नंबर के, इसने शायद पेपर थोड़ा मॉडरेट बना दिया है, अदरवाइज पेपर बहुत एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही था. इंग्लिश की बात करें, सो द मेजर सरप्राइजेस, the reversal of marks in comprehension to 40 and 30, and in essay to 40, and the word limit of essay was almost like 600 to 620 if I remember correctly. So I think earlier it was just like 400 450 at the max. This year they asked you to write an essay on 600, so many people would have find it difficult. They would have really I would say मतलब उनको मुश्किल हुआ होगा एग्जाम में कहीं ना कहीं वो पेपर पूरा करने में. ठीक है, तो इंग्लिश का पेपर मैं फिर भी बोलूंगा कि इट वाज जस्ट लाइक फ्रॉम इजी टू मॉडरेट. इजी इसलिए नहीं कि बहुत इजी था, बट मतलब ऐसा पेपर तो आना ही था यार, ये एक्सपेक्टेड था. ऐसे क्लाइमेट चेंज पे आया जो सब लिख के आए होंगे. ठीक है, प्रेसी भी वीमेन रिलेटेड एआई पे आया, विच वी आर ऑल, आई मीन वी आर रीडिंग दीज टॉपिक्स इन द न्यूज़पेपर्स. तो इजी टू मॉडरेट मतलब ऐसा नहीं है कि इजी था, बट स्टिल डुएबल था. मतलब इससे ज्यादा अब क्या हल्का पेपर आएगा. तो ये एक ओवरऑल एनालिसिस है मेरे हिसाब से. ठीक है, अगेन it's very subjective, it depends upon your preparation. हमें ही एक स्टूडेंट का फोन आया जो कह रहा है सर एफएम तो फोड़ आया हूँ, ऑब्जेक्टिव में तो 50 में से मेरे मतलब 45 प्लस आने वाले हैं. सो वी हैव दीज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स आल्सो, एंड देयर आर स्टूडेंट्स आर सेइंग सर मेरे 25-30 ही आएंगे एफएम ऑब्जेक्टिव में. सो देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच यू हैड प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम. तो ये एक सब्जेक्टिव एनालिसिस है. अगेन सबकी अलग अलग ओपिनियन होगी. नो व्हाट कैन बी द कट ऑफ्स इफ वी see the 2022 paper, right there, the cutoff for phase 2, that is to get an interview call, that cutoff was around about 171. I have not put the exact figure, but it was 171 point something, and the final cutoff was 234, right, in 2021. अभी 2023 में क्या हो सकती है? If I compare the paper of the last year versus this year, I think FM में last year भी 3 क्वेश्चंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे बहुत अनएक्सपेक्टेड आए थे. इस साल 5 क्वेश्चन आए, उसमें से भी 1-2 किए जा सकते थे. सो नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस, थोड़ा सा आप लगा लीजिए इधर उधर. बाकी सब्जेक्टिव आसान था मेरे हिसाब से लास्ट ईयर से. ईएसआई में गुरकीरत सर का कहना है कि थोड़ा टफ ही मानिए या सिमिलर मानिए, सो ज्यादा फर्क नहीं है. इंग्लिश में भी आई डोंट थिंक देयर इज मच ऑफ अ डिफरेंस. तो मुझे लगता है कि पेपर ऑलमोस्ट सेम था, शायद थोड़ा सा टफ कह लीजिए एफएम की वजह से, जो वो 5 क्वेश्चन आए as compared to the last year. But last year seats were more, this year seats are less, right? तो शायद ये कट ऑफ आपका मुझे लग रहा है मतलब ये से 170 प्लस माइनस 5 जा सकता है. 170 प्लस माइनस 5, आई थिंक 170 प्लस जाने के चांस मुझे लग रहे हैं, बट आई कैन बी रॉन्ग. बट 165 और 175 के बीच में जा सकता है. But यहाँ पे it's not about this cutoff, because if you see in 2021, the difference between you clearing phase 2 and you clearing the final merit list is 60 marks, more than 60 marks. तो अगर आपके यहाँ पे 171 मार्क्स आते, फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के लिए चाहिए थे 234. The difference is more than 60 marks, means this 60 marks you should have got out of 75 in the interview, which is no easy task. तो अगर आप अपनी इंटरव्यू पे डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं, आई थिंक ये 170 से काम नहीं चलेगा, राइट? अगर ये कट ऑफ जाती है तो इंटरव्यू में मैं मानूंगा कि चलो आप 35 to 40 मार्क्स टारगेट कीजिए ऑन अ सेफर साइड. तो आपको यहाँ पे कट ऑफ टारगेट नहीं करनी है. आपको मेरे हिसाब से 190 मार्क्स एक सेफ स्कोर हो सकता है इन योर फेज 2. आफ्टर दैट इवन इफ यू गेट 40-45 इन द इंटरव्यू, आप शायद फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाए. और ये 190 टारगेट करने के लिए देयर कैन बी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस. किसी का ईएसआई स्ट्रांग होगा, किसी का फाइनेंस, किसी का इंग्लिश, राइट? मेरे हिसाब से बट दीज कैन बी गुड स्कोर्स. एफएम में 65, ईएसआई में 55, राइट? और इंग्लिश में 70. Well, it all depends upon marking also, whether the marking is lenient or the marking is strict. It all depends upon that also, because 300 में से 200 मार्क डिस्क्रिप्टिव हैं. बट जो ट्रेंड देखते आए हैं, जिस तरह की मार्किंग हो रही है, आई थिंक दिस कैन बी गुड स्कोर्स. एफएम 65, इंग्लिश 70, ESI 55, which is a total of around 190. ठीक है, I again want to tell you that this is a very subjective analysis. Nobody can tell you the exact figure.
but this is based upon our internal discussion, our internal analysis and talks with lot of students. ठीक है, बाकी देखते हैं रिजल्ट आपका फेज 2 का तो बहुत जल्दी आ जाता है, आई थिंक लास्ट ईयर विद इन 10 days आ गया था. सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट. और अभी कुछ मत सोचो, जैसा पेपर हो गया है बस ठीक है, अपना आराम करो यार, थोड़ा पार्टी वार्टी करो, पिक्चर विक्चर देखो, घूमने जाओ, ऐश करो, टेक अ ब्रेक, you deserve that. Whatever is the result, irrespective of that, you deserve this break. Enjoy that break. Recharge करो, नेक्स्ट फाइट की तैयारी करो, चाहे इंटरव्यू होगा, चाहे आरबीआई ऑफिस ज्वाइन करना होगा, चाहे नेक्स्ट ईयर का प्रेपरेशन होगा. चैलेंज अभी खत्म नहीं हुआ लाइफ में, पिक्चर अभी बाकी है. सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर with being with us for this entire year. It was really a motivating, enthralling journey. बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे, बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है, आपका प्यार भी मिला है, क्रिटिसिज्म भी मिला है. वी ऑल एक्सेप्ट दैट एंड वी आर प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद ऑल ऑफ यू. दैट इज ऑल आई कैन से. बेस्ट ऑफ लक. जय हिंद.